Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to see a tutorial video from a Code Forces round 802 division 2 problem D river locks. Okay, so if you will see the diagram, it includes something related to rainwater problem. Okay, if you have studied it in before, so we will see this problem. I will generalize the approach problem statement and then we will discuss the approach and solution of the problem too. Okay, but before that, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, just go subscribe this YouTube channel and like this video and share this video to your friends also. Okay, so that they can also see content related to editorial videos, competitive programming, blockchain. Okay, fine. And one more thing, if you don't know about Newton School pay after placement program, what you can do, you can just go to the link in description and register to it. Now what they do, they will train you as a full stack developer and not only this, after that they will also get you placed. अब सबसे amazing thing क्या है इसमें, that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company. Okay, and minimum CTC 5 to 40 LPA. So this is their full stack developer course, or you can say pay after placement program. Sorry, so you can just go to the link in description and register to it. Let's start with the problem today. रिवर लॉक्स. सो मैं जनरलाइज कर देता हूँ प्रॉब्लम को. एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये हमारे कुछ रिवर लॉक्स हैं, ठीक है, और तुम इनको वाटर बॉटल्स की जैसे ले सकते हो. अब हर वाटर बॉटल के ऊपर एक एक टैप है, ठीक है. इनिशियली सारी वाटर बॉटल्स एम्प्टी हैं एंड एक टैप को जब ओपन किया जाता है तो वो 1 सेकेंड में 1 लीटर पानी उस बॉटल में, 1 लीटर वाटर उस बॉटल में फिलअप कर देता है. ओके, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर सम टाइम दिस लॉक विल गेट full of water. Okay, in that case the excess of water will go to the right bottle, you can say. ठीक है, और इसी तरह उसके राइट में जब ये वाला फुल हो जाएगा तो उसके राइट में, जब ये वाला फुल हो जाएगा उसके राइट में, and in the end water will get spilled out of all the bottles. Okay, fine. Now what the question is saying that initially सारी की सारी bottles empty थी. ठीक है, मैं टेस्ट के समझाता हूँ. Initially all the bottles were empty. Okay, and this is, you can say, capacity of bottles, that first bottle can take up to 4 liter, second up to 1 liter, third up to 5, then 4, then 1. Okay, then these are some queries. You have in total 6 queries. You need to find out how many taps you need to open so that you can fill up all the bottles above given in maximum t seconds. ओके, सो आई एम जनरलाइजिंग दिस. तुम्हें हर क्वेरी में क्या गिवन है, कुछ कुछ टाइम गिवन है, ठीक है, 1 6 2 3 4 5. तो तुम्हें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ टैप्स तुम्हें बॉटल के ओपन करने होंगे सच दैट कि तुम मैक्सिमम 1 सेकेंड में सारी के सारी बॉटल्स को फिल कर पाओ. ओके, फाइन. अदरवाइज अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम सारी बॉटल्स को 1 सेकेंड में फिल नहीं कर पा रहे. इन दैट केस यू नीड टू प्रिंट -1. ओके, so you can see answer -1 3 -1 -1 4 3. फाइन. सो ऐसा कुछ क्वेश्चन है. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सारी की सारी बॉटल्स इनिशियली एम्प्टी हैं, मुझे एक टाइम गिवन है, मुझे उस टाइम में ये पता लगाना है कि मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स ओपन करने हैं. ठीक है, यू कैन सी हेयर टू मेक, यहाँ पे कहीं पे गिवन होगा, you need to find out the minimum number of pipes to open so that all locks are filled no later than after tj seconds. ठीक है, तो हर क्वेरी में हमें t की वैल्यू गिवन है, t से ज़्यादा सेकेंड्स हमें नहीं लेने हैं और हमें कितने टैप्स खोलने हैं हमें ये बताना. तो क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर. सपोज मैं ith क्वेरी में हूँ, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है मेरी, दैट वेदर मैं इतने सेकेंड्स लेके पूरी की पूरी बॉटल फिलअप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. ओके, फाइन. तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू चेक कि मैं सपोज ith क्वेरी में हूँ और मेरे पास टाइम है 6. ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि मैं 6 सेकेंड्स में वेदर इवन आई कैन फिल अप ऑल द बॉटल्स और नॉट. ठीक है, क्या मैं पूरी की पूरी बॉटल भर भी सकता हूँ या नहीं.
ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टैप्स तो मैं बाद में निकालूंगा। तो उसके लिए तुम कहीं ना कहीं देख रहे होगे दैट देयर आर सम टैप्स गिवन बॉटल्स, ये से सपोज ये मेरी बॉटल्स हैं, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो इसका क्राइटेरिया होगा कि मिनिमम इन बॉटल्स को सारी भरने के लिए मुझे कुछ m सेकेंड्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। m सेकेंड्स के पहले ये बॉटल्स भरी ही नहीं जा सकती, मुझे इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए, राइट। सपोज इसकी डेप्थ है 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। सपोज मैंने फर्स्ट सेकेंड में सारे के सारे टैप्स खोल दिए, ठीक है। तो 3 सेकेंड्स में ये भी फिलअप हो जाएगी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेकेंड्स, कि मुझे 3 सेकेंड्स तो चाहिए चाहिए इन सारी बॉटल्स को फिलअप करने के लिए, ओके। उसके पहले मैं नहीं फिलअप कर सकता। अब किसी क्वेरी में तुम्हें t की वैल्यू अगर 2 गिवन है तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी -1 बिकॉज यू कांट फिल अप ऑल द बॉटल्स इन मैक्सिमम t सेकेंड्स, ठीक है। तुम सारे t सेकेंड्स में सारे टैप भी खोल दो तब भी तुम सारी बॉटल्स फिलअप नहीं कर सकते। सो दिस इज द थिंग, फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द m फॉर अवर टेस्ट केस, राइट। कि मेरे करेंट टेस्ट केस के लिए दैट इज दिस वन, इसके लिए m की वैल्यू क्या है, दैट इज मिनिमम टाइम जो मुझे सारी बॉटल्स को फिलअप करने में लगेगा ही लगेगा। वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगी। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं। तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक कैपेसिटी ऑफ बॉटल, ठीक है, दूसरी चीज़ टाइम और तीसरी चीज़ टैप और नंबर ऑफ टैप्स विच आर फिलिंग दीज बॉटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम टाइम कैसे निकलेगा। तो क्या तुम ये सोचो, सपोज ये मेरे टैप्स थे, ये मेरी बॉटल्स थी, सॉरी, और यहाँ पे शुरू में इसकी लेंथ थी 6, ठीक है, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 1, ये सबकी कैपेसिटी गिवन है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि मुझे मिनिमम टाइम इसमें कितना चाहिए, इसका मिनिमम टाइम होगा 6, ठीक है। 1 सेकेंड में ये सब तो भर ही जाएंगे, बट इसको लगेंगे टोटल 6 सेकेंड्स, ठीक है, फाइन। नाउ टू फिल ऑल दीज बॉटल्स और टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ m, एक चीज़ का पता करो, क्या तुम्हें सारे के सारे टैप्स खोलने की ज़रूरत है ही है? ऑब्वियसली नॉट। हो सकता है कि तुम पहला टैप खोलो और उसी से सारी तुम्हारी बॉटल्स भरती चली जाए, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 होती और इसकी वैल्यू 6, 5 और 3 होती समथिंग, तो तुम यहाँ से जैसे ही 1 सेकेंड के बाद सारा का सारा पानी इसमें जाने लगता फिर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तुमने फर्स्ट टैप खोला और उससे पानी आगे जाने लगा। तो यू कैन से कि कहीं ना कहीं हमें कुछ प्रीफिक्स बॉटल्स के टैप्स ही खोलने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ मुझे समझ में आती है। अब हो सकता है इन एनी केस दैट प्रीफिक्स विल इंक्लूड कंप्लीट एरे, ठीक है। अगर मैं इसको एरे बोलूँ तो हो सकता है कहीं पे कि उस प्रीफिक्स में सारे टैप्स आ जाएं, हो सकता है कुछ शुरू के टैप्स ही आए, बट मुझे कहीं ना कहीं प्रीफिक्स के टैप्स ही खोलने हैं, ओके ना। उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मेरा जो m की वैल्यू है वो किसी भी टैप में डिपेंड कर सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका जस्ट पहले वाला टेस्ट केस बताया था, यहाँ पे ये जो 6 वैल्यू थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक के टैप्स खोल रहा हूँ खाली, सपोज मुझे बेसिकली क्या निकालना है, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू किसी पे भी डिपेंड कर सकती है। उसके लिए मुझे चाहिए कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे कौन सी बॉटल को फिल करने में लग रहा है ना। मुझे सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे कौन सी बॉटल को फिल करने में लग रहा है, और वो जो भी टाइम होगा वही टाइम मेरा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6 सेकेंड्स लग रहे हैं मेरी इस वाली बॉटल को फिल करने में, सबसे ज़्यादा टाइम यही है, तो मेरा जो m की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। अब सपोज ऐसा केस होता, ये जो 6 है वो यहाँ पे होता और 1 यहाँ पे होता, ठीक है। तो अब मुझे कितने सेकेंड्स लगते हैं 6 सेकेंड वाली बॉटल को फिल करने में? अब भी क्या 6 सेकेंड्स लगते हैं? एक चीज़ ये पता करो, क्या अभी भी 6 सेकेंड्स लगते हैं? तो आई एम सेइंग नो। वाई? देखते हैं अभी। फर्स्ट सेकेंड में मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड में
ये वाला पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड में ये भी, इसमें भी 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 और ये दोनों भी फिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड में मैंने क्या किया, जब दूसरा सेकंड आया तो उसमें ये टैप भी खुला है, ये टैप भी खुला है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, बट ये ऑलरेडी फुल है तो इसका पानी भी इसमें आ जाएगा। तो ड्यूरिंग सेकंड इसकी जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। यू कैन से कि इस वाले बॉटल में 2 लीटर पानी आ जाएगा ड्यूरिंग सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से तुम कह सकते हो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो ith बॉटल है वो ith बॉटल अपने प्रीफिक्स के टैप्स में भी डिपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है दैट योर ith बॉटल विल बी डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन टैप, जो इसका ओन टैप है और जो उसके प्रीफिक्स के टैप है, राइट। ओके, सो ये था मेन की पॉइंट। अगर तुम्हें यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई तुम्हें पूरा क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। फाइन, तो अब मुझे m की वैल्यू निकालनी थी। m की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कह रहा था कि मुझे सारी बॉटल्स में जाना पड़ेगा और मुझे चेक करना पड़ेगा किसको सबसे मैक्सिमम टाइम लग रहा है खुद को फिलअप करने में, ठीक है। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं ith सारी बॉटल्स में इटरेट कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास i बॉटल्स है, मैं सारी बॉटल्स में इटरेट कर लूँगा। सारी बॉटल्स में इटरेट करते टाइम सपोज मैं इस बॉटल का टाइम निकाल रहा हूँ, इस बॉटल का टाइम किस पे डिपेंड करेगा, इस पूरी प्रीफिक्स एरे पे। ये चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, इस पूरे प्रीफिक्स की बॉटल्स के टैप्स पे, ठीक है। अब इसका मैं टाइम निकालूंगा कैसे, मुझे ये देखना है। तो अगर मैं बोलूँ कि इन सारी बॉटल्स को टोटल वाटर चाहिए कितना है, टोटल वाटर कितना चाहिए इन सबको, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, प्रीफिक्स सम ऑफ ऑल दीज वाटर कैपेसिटीज, ठीक है। अगर इसको 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए और इसको 5 चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन सारी बॉटल्स को टोटल कितना पानी चाहिए, 5 4 9 3 12, तो टोटल 12 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है मेरे पास, 3 है, ठीक है। तो आई कैन से कि पहले 3 अगर मैं 12/3 कर दूँ तो यू कैन से कि 4 सेकंड के बाद ये सारी की सारी बॉटल भर जाएंगी। कैसे, अब मैं ये बताता हूँ, ये देखना, ठीक है। टोटल कैपेसिटी फर्स्ट 3 बॉटल्स की कितनी थी, 12। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी थी, 3। तो 12/3 सेकेंड्स में तुम्हारी सारी बॉटल्स भर जाएंगी। कैसे, ये देखो, 3 लीटर पानी पहले 3 सेकंड में इसमें आ जाएगा, बाकी जो बचा हुआ 1 लीटर पानी है वो इन तीनों में से किसी एक में ही जाएगा ऑब्वियसली, राइट और रॉन्ग, फाइन। तो जो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 4 सेकंड में, ठीक है, अगर मैं इन तीनों टैप्स को ओपन करता हूँ, क्योंकि जो ith बॉटल है मेरी वो तीनों टैप्स में डिपेंडेंट है, तीनों टैप्स ओपन है ऑलरेडी, ठीक है। 4 सेकंड में टोटल पानी इनसे कितने निकलेगा, 4 × 3 12 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और 12 लीटर ऑफ वाटर ही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो काइंड ऑफ तुम क्या निकाल रहे हो, 4 सेकेंड्स में टोटल लीटर ऑफ वाटर, ये काइंड ऑफ अगर तुमने डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की इक्वेशन पढ़ी है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की अगर इक्वेशन पढ़ी, दैट इज सिंपल सी 10th क्लास की लेवल की मैथ्स है, दैट रिक्वायरमेंट इज 12, ओके, एंड यू हैव टोटल 3 टैप्स, तो हाउ मेनी seconds it will take to fill up all the requirement, so it will obviously take 4 seconds, ठीक है। तो 4 seconds मुझे ith बॉटल को फिल करने में मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, फाइन। इसी तरह मैं पूरी की पूरी एरे में इटरेट कर सकता हूँ और मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरा मोटिव क्या था, m की वैल्यू निकालना, और m की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ith बॉटल तक के फिल करने को मुझे कितने लग रहे थे, 4। अब हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आऊँ मुझे 5 लगें, तो m की वैल्यू इन सब की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, कि सारी की सारी बॉटल्स को फिल करने में कौन सी बॉटल सबसे मैक्सिमम टाइम ले रही है, और वही मेरी m की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एज सून एज आई हैव द वैल्यू ऑफ m, मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं इस
क्वेरीज में इटरेट करूँगा, मैं सिंपली चेक करूँगा कि कहीं पे भी जो क्वेरी का टाइम है अगर वो m से छोटा है, ठीक है, इन दैट केस माई आंसर विल बी सिंपली -1, राइट। इन दैट केस माई आंसर विल बी सिंपली -1, क्योंकि मुझे मिनिमम m सेकेंड्स तो चाहिए टू फिल माई ऑल द बॉटल्स, फाइन। अब उसके बाद अगर वैसा नहीं है तो मेरे पास सिंपल सी डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की इक्वेशन है। कैसे? मुझे टोटल कैपेसिटी सारी बॉटल्स को फिल करने के लिए क्या चाहिए? प्रीफिक्स सम ऑफ n, और यू कैन से टोटल कैपेसिटीज ऑफ ऑल द बॉटल्स। मुझे टोटल इतना वाटर चाहिए, सपोज ये वाटर है x लीटर्स। थोड़ा सा मैं आज गंदा लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम राइटिंग इट विद माई माउस, सो आई होप यू ऑल कैन टॉलरेट मी फॉर दिस। सपोज टोटल वाटर मुझे चाहिए x लीटर, ठीक है। अब टाइम मेरे पास कितना है? 6 सेकेंड्स सपोज, ठीक है। टाइम मेरे पास कितना है? 6 सेकेंड्स। मुझे निकालना क्या है? टोटल टैप्स जो मुझे चाहिए। तो मुझे टोटल वाटर चाहिए x लीटर्स और मेरे पास टाइम है 6 सेकेंड्स, तो मुझे पर टैप से कितना चाहिए? पर टैप से मुझे या फिर टोटल नंबर ऑफ टैप्स मुझे कितने चाहिए? x/6 प्लस इफ अगर अभी भी कुछ वाटर रह जाता है, ठीक है, पर टैप से मेरा कितना वाटर, टोटल नंबर ऑफ टैप्स तुम्हारे ऐसे निकल सकते हैं। सिंपल सी फिर से 10th लेवल की मैथ है कि तुम्हें पर टैप से कितना पानी चाहिए, तुम ऐसे कर सकते हो। तुमने अगर वो डेज वाला कि तुम्हारा एक डे में तुम्हारा इतना वर्कर इतना काम कर रहा है, तो इतने नंबर ऑफ वर्कर्स कितने डे में कितना काम करेंगे, ये वैसी वाली इक्वेशन है। तुम इसको ऐसे वैसे करके भी पेन पेपर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टोटल वाटर मुझे x लीटर्स चाहिए है और टोटल सेकेंड्स मेरे पास इतने हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड तुम ऐसे कर सकते हो, देखो, पर 1 सेकेंड में कितना पानी जाएगा, और तो 30 सेकेंड्स में कितना पानी जाएगा, ऐसे करके कुछ कर लो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टैप्स, मैं अब वो चीज़ें छोटे बच्चों वाली चीज़ें नहीं समझा रहा। टोटल नंबर ऑफ टैप्स तुम्हें x/6 चाहिए, ठीक है। अब x/6 यहाँ पे चीज़ हो गई तुम्हारी जब x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, अदरवाइज +1। ये चीज़ तुम्हें आई गेस समझ में आ गई होगी। सपोज टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है तुम्हारी 13, ठीक है, और टोटल 6 सेकेंड्स तुम टाइम खोल सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ पाइप्स तुम्हें या टैप्स कितने चाहिए? 3। वाई? तुमने एक टैप खोला, दूसरा टैप खोला, तीसरा टैप खोला, ठीक है, तो 6 सेकेंड्स में कितना पानी छोड़ देगा? 6 टोटल रिक्वायरमेंट, लेकिन तुम्हारी कितनी होगी? 13। तो तुम्हें जो बाकी बचा हुआ 1 लीटर है उसके लिए तुम्हें थर्ड टैप भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडलो मैथ है, अगर 13 मॉडलो 6 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यू नीड टू सिंपली 13/6 + 1, अदरवाइज 13/6, ठीक है। तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप, थर्ड टैप, हर टैप तुम्हारा 6 दे रहा है, तो तुम्हारा टोटल 13 के लिए कितना टैप्स लगेंगे। ईजी सिंपल सी मैथ्स है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया आई गेस, बट दैट्स ओके। अब यहाँ पे तुम सिंपली क्या करोगे, सारे इनपुट्स ले लो, फिर प्रीफिक्स सम निकाल लो। प्रीफिक्स सम के बाद यहाँ पे m मैक्सिमम में मैं m की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और वो कैसे करनी है, सारे टैप्स में जाओ और सारे टैप्स में जाके हर बॉटल को फिल करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगने वाला है, उन सब की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ठीक है। तो ये है वो वैल्यू जो i तक की बॉटल्स को फिल करने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पे तुम देख रहोगे सम ऑफ i, दैट इज टोटल कैपेसिटी ऑफ बॉटल्स अप टू ith इंडेक्स प्लस i-1/i किया है। तो ये सिंपली टू कंसीडरेट मॉडुलो, ठीक है, टू कंसीडर मॉडुलो। अगर तुम्हें मॉडुलो वाली चीज़ समझ में नहीं आती है, दैट इज़ ये जो मैंने किया है, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। इफ़ प्रीफिक्स सम ऑफ i मॉडुलो i इज इक्वल्स टू 0, तो तुम इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज +1, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आई तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। उसके बाद सारी क्वेरीज़ के इनपुट लिए,
इन द एंड अगर तुम्हारी जो मैक्सिमम से वैल्यू कम है स्क्वायर की तो -1, अदरवाइज टोटल कैपेसिटी प्लस x - 1 बाई एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टैप्स है। अगेन यहाँ पे मॉडुलो वाली चीज़ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा टैप चाहिए तो +1 कर देना, अगर नहीं चाहिए तो सम ऑफ n प्रीफिक्स सम ऑफ n बाई x कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे ये जो ट्रिक है छोटी सी, ये तुम्हारी मॉडुलो बैलेंस करने के लिए होती है। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. In the end, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, just go subscribe this YouTube channel and like this video and share this video to your friends. And if you haven't checked Newton School Pay After Placement program, also go and check their Pay After Placement program. You can register yourself via link in description. Thank you guys for watching.